देखिए, जब भी हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, है ना, वो माइनर हो सकते हैं और मेजर हो सकते हैं क्वेश्चन। तो माइनर जो क्वेश्चंस हैं उसमें हॉररी प्रिडिक्शन जो है ना, हाउ यू विल प्रिडिक्ट अ माइनर क्वेश्चंस, लाइक जिसमें कोई ज्यादा प्रेशर नहीं रहता, या उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो मैटर इतना नहीं रहता कि आप बहुत परेशान हो जाए, है ना। पिछली क्लास में भी मैंने बोला था, एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरा दोस्त आने वाला है घर पे, वो नहीं भी आएगा तो आपको कोई टेंशन नहीं होनी है ना। फ्रेंड्स अगर विजिट करना चाह रहा है आपके घर पे, लेकिन आपका बच्चा स्कूल से नहीं आया टाइम पे, कितना टेंशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो है ना, आपको ध्यान रखना है कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वहां से डिसाइड होता है। कई चीजें डिसाइड होती हैं। तो जब मेजर इवेंट करेंगे हम लोग थ्रू हॉररी और प्रश्न कुंडली, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं दैट विल बी वेरी डिफरेंट। एंड माइनर क्वेश्चंस जो है ना, वो यू कैन प्रिडिक्ट वेरी इजली। तो व्हाट इज द प्रोसीजर टू प्रिडिक्ट अ माइनर क्वेश्चंस, लाइक गेस्ट likely to visit at your home or at your office? Okay, is there any meeting related with your you know social gathering kind of thing? तो उसमें कैसे प्रिडिक्ट करते, तो सबसे पहले वी विल टेक एन एग्जाम, स्मॉल क्वेश्चन, व्हेन द गेस्ट विल विजिट एट योर होम। बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, व्हेन अ गेस्ट विजिटिंग एट योर होम फॉर फिक्सिंग मैरिज और इंगेजमेंट। वो भी विजिट ही कर रहा है घर पे, लेकिन एक का पर्पस बहुत जिसको कहते हैं कि जनरल है, और एक का पर्पस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे वो आप एक लाइन में आप समझ लो। आपको जो मैं बता रहा हूं वन बाय वन, आपको क्या करना है। यू हैव टू कास्ट द हॉररी चार्ट और प्रश्न कुंडली, एंड आफ्टर कास्टिंग द हॉररी चार्ट or Prashna Kundli, if native is asking a question about himself or herself, no need to rotate the ascendant. But if querist is asking a question related to their relative, to his relative, like mother, father, children, after casting the chart, you have to rotate the ascendant as per the native's question. Like if a person is asking about the marriage of his child, then you have to rotate the chart, rotate the ascendant, and fix the ascendant as fifth house. Is it very clear? If asking about father, you have to rotate from the ninth house. If he is asking about his elder brother, you have to rotate from the 11th house. Okay, asking a question about his and her mother, then you have to rotate the fourth house as a ascendant. First. Second, you have to check the promises of the event. This question is genuine or not, you have to check also. Sometime someone is asking about a mango, but the banana is in his head. So the question should be genuine for answering in horary or prashna kundi. How you will check? Very simple method. You have two parameters. One is moon, no matter moon has positional status or not, and moon is star lord. Two planet you have to check. Moon or moon
star lord should be placed as a co-ruling, as a sign lord, star lord, sub lord or sub lord, or in a bhava in the primary cusp or primary bhava. Suppose a person is asking about marriage, moon or moon star lord, any one should be placed in seventh cuspal position or seventh bhava. It means question is genuine. Another method is, if moon or moon star lord does not appear directly in the primary cuspal position or in a bhava, that moon or moon star lord should be involved in 11th cuspal position, fulfillment and desire, and committed through sublord. That sublord must appear as a co-ruling planet in the primary cuspal position or in the bhava. Is it very clear? Now see, now we have to fix Dasa Lord, co-ruling planet of moon, and co-ruling planets of ascendant. There are three parameters which we have to consider for predicting an event. First of all, what we have to check, simply we will check all the RP moon, ruling planet moon, should be related to the ascendant's co-ruling planet. जो मून के जो को रूलिंग प्लैनेट्स हैं वो एसेंडेंट के जो को रूलिंग प्लैनेट हैं उनके साथ जो है वो अपना रिलेशन एस्टैब्लिश करना होता है। प्रोसीजर बहुत सिंपल है। मान लो, जो टेक एन एग्जांपल, मून इन द स्टार ऑफ ए, इन द सब ऑफ बी, इन द सब ऑफ सी. An ascendant co-ruling planet is X, Y, Z, and P. Now you check the RP moon planet. If appearing directly in a ascendant as a co-ruling planet, means it is done. As simple as. Second condition is, if co-ruling planet of moon is placed in as a star lord of any planet co-ruling the ascendant. Suppose Mars is the sign lord of ascendant and moon star lord is Jupiter. That Mars may be placed in Jupiter star or Jupiter sub. Clear? Very simple. Likewise, you have to check. If any co-ruling planet of moon is not making a relation with the ascendant co-ruling planet, you have to discard that planet. सिंपल वे में बोलेंगे कि यदि एसेंडेंट का कोई प्लैनेट मून के जो को रूलिंग प्लैनेट के साथ अपना रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करता, उसके जगह पे, जैसे मान लो साइन लॉर्ड ही नहीं कर रहा, तो साइन लॉर्ड को आगे करने के लिए 2 घंटे का टाइम लगेगा, है ना? इफ साइन लॉर्ड does not make any relation with the RP moon planet, then you have to change the sign lord, then it will take 2 hours approx. If the star lord does not make a relation with the RP moon, it will take at least approx 54 minutes. If sublord is not making relation, it will take some around 2.40 seconds to 10 minutes. Okay. Likewise, you have to change the time and fix such a planet who is making relation with the RP moon. यहां तक पूरा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब क्या होता है कि जो प्लैनेट, जो मून के जो को रूलिंग प्लैनेट्स हैं,
जब आपने कुंडली कास्ट की, that planet will become the Dasa Lords also. If moon is placed at the time of casting the chart, moon as star lord become the Dasa Lord. Moon sub lord will become the Bhukti Lord. Moon sub lord will become the Antara Lord, and then Sukshma and Prana, as simple as. ठीक है? तो अभी इधर क्या कर सकते हैं कि जो प्लैनेट मून के को रूलिंग प्लैनेट हैं, जिन्होंने अपना रिलेशन स्टैब्लिश किया एसेंडेंट के को रूलिंग प्लैनेट्स के साथ में, वो सब के सब अपने इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट से उस घटना को भी देने चाहिए। केवल रिलेशन स्टैब्लिश करने से कुछ नहीं होगा। अब क्या करते हैं कि आपको मान लीजिए कोई पूछे कि गेस्ट घर पे आने वाले हैं और आपने कुंडली कास्ट कर ली, तो पता चला कि जो साइन लॉर्ड है वो 4 और 7 और 11 के अंदर इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट रख ही नहीं रहा है। तो क्या करेंगे? वो साइन लॉर्ड हटाएंगे, दूसरा तो 2 घंटे का टाइम आगे हो गया ना। अगर वो मिल जाता है तो फिर हम सब लॉर्ड को देखते हैं एसेंडेंट के। इफ सब लॉर्ड सिग्निफाई 4, 7 and 11, then it's okay. Otherwise we will take another 54 minutes. तो दूसरा कोई प्लैनेट फिक्स करेंगे जो कि 4, 7 और 11 के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट रखता है। ऐसे ही टाइम को आगे बढ़ाते जाते हैं। जिस टाइम पे ये सारे के सारे जो है ना मून के कोरूलिंग और आपके असेंडेंट के कोरूलिंग, ये 4, 7 और 11 के अंदर अपने इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट रखते हैं, वही टाइम होता है आने का। 1 minute, let me unmute all of you. Please, only 2 minutes for your question. कोई बोलना चाह रहे हैं? Anyone? आवाज आवाज नहीं आ रही। एक मिनट अनम्यूट किया, अलाउ हाँ कर। सर, मैं हाँ बोला। जी, बताइए। सब लॉर्ड, सब लॉर्ड और ये सारे के सारे को रूलिंग प्लेनेट, सारे मून के को रूलिंग प्लेनेट और सन के को रूलिंग प्लेनेट सन के नहीं मैच होना लिए चाहिए, या मैंने, कोई भी एक हुआ तो। सन का नहीं लिया है क्योंकि माइनर इवेंट में सन नहीं लेते। जी। सन का कोई भी को रूलिंग प्लैनेट अभी हमने जिक्र नहीं किया है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक बार वो प्लैनेट, वो क्वेश्चन जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको बताऊं आपको कि सपोज कीजिए कोई मैरिज के लिए आपके घर में गेस्ट आने वाला है और इंगेजमेंट की बात होगी और फिर मैरिज की बात होगी। तो ये जो बनेगा सीक्वेंस, वो आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे? तो अगेन अगर कोई गेस्ट आने वाले हैं घर पे, तो गेस्ट अगर आने वाले हैं आपको विजिट करने वाले हैं, तो गेस्ट कौन है? 7th हाउस है ना। और अगर बात इंगेजमेंट की है, फंक्शन की है, तो 5th हाउस। अगर मीटिंग होनी है तो 3rd हाउस is the meeting house for the ascendant, and 9th house is the meeting house for the 7th house. And if the meeting is about marriage and engagement, then engagement is 7th house, marriage is also 7th house. So involvement of cuspal position 1, then 3, then 5, then 7, then 9, and maybe 11, because 11 is the fulfillment of desire. So ascendant sub lord and 7th sub lord and 11th sub lord should be involved and commit in 1, 3, 5, 7, 9 and 11. When the guest will arrive at home, सेम प्रोसीजर है ना। पहले आएंगे तभी तो बात शुरू होगी। तो जब पहले आएंगे तो मून के को रूलिंग प्लैनेट, ये सारे के सारे असेंडेंट के को रूलिंग प्लैनेट्स के साथ अपना रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। प्रोसीजर वही है।
और करने के बाद वो अपने स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड के द्वारा ये प्राइमरी और सपोर्टिव कस्पल पोजीशन में जाएंगे। अब आप देखो, आप बोलोगे कि भाई क्या हुआ, ये तो आए 2 घंटे बैठे, गेस्ट स्टे एट होम फॉर 2 hours or 3 hours. So initially, when you check the co-ruling planet of moon as well as ascendant, all these planets are related with each other and signify only 3 and 9, 5 and 5, not 7. Then how you will say that it is about marriage? So first of all, when you will check the co-ruling planet of ascendant and moon and dasa lords, who is involved in 3 and 9 and 5 or 11, after some time, after 45 minutes, the star lord of ascendant will be changed. And that star lord may be that planet who is signifying 7th also. So after that particular star lord of ascendant will start negotiation about the marriage. Likewise, every minute your sub lord will get changed, your sub lord will get changed, your star lord will be changed, your sign lord will be changed, and accordingly the next planet, who is the real planet who has all the involvement and commitment strongly, then your event of your meeting will be successful. As simple as at the time of happening anything, moon, Sukshma and Prana Lord should be very strong significator for the event. Mind it, always. And Can I ask you a question? please give me 2 minutes more. Then I will give Okay, you sir. 2 minutes time for questioning, answering. Okay. तो जब ये पूरा फिक्स हो जाए, आपको उस टाइम पे देखना है, जो इवेंट थोड़े से मेजर है, कि मून का स्टार लॉर्ड और सन का स्टार लॉर्ड ये प्राइमरी हाउस के अंदर इटसेल्फ अपीयर हो जाए, या वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बने उस घटना के लिए। यहां पे मैंने जिक्र किया मून का स्टार लॉर्ड और मून का सन का स्टार लॉर्ड। उसको नैरो डाउन करने के लिए एक सन जो है ना, वो ट्रांजिट इन ए स्टार फॉर एटलीस्ट 13 days and 8 hours, and in a sub for 1 day. Moon transit in a star for 1 day. For 1 day event, we have to check moon star lord and sun star lord as well as sun sub lord. As simple as. सर When, एक एग्जांपल लीजिए। हाँ एग्जाम्पल भी लेते हैं। आपको जी। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना था, प्लीज वो पहले पूछ लीजिए। Yeah, yes, sir. Suppose that promise is not seen, Okay. then that person won't be coming. No. If promise is not there, it means question does not arrive for any event. अगर क्लियरली प्रॉमिस नहीं है, डिनाई भी नहीं है, डिनाई हो गया, इट मीन्स कि आपको वो घटना घटित नहीं होगी। अगर प्रॉमिस में नहीं आया तो वो श्योर नहीं होता। अभी पीछे वो क्वेश्चन आ रहा था ना हेमंत जी का, है हाँ। वो हमने एक और भी चीज है। अब आपने इंस्पेक्शन इतना बोला तो हम पहुंच गए 10th हाउस, वर्क प्लेस। अब मैंने स्पेशली लिखा भी है उसके अंदर, है अगर 4th हाउस हाँ घर जी। पे आना था तो उसके लिंकेजेस जब बनते तो बनते, लेकिन तब भी क्या, तो मैंने, आपने बोला 12 बजे से 4 बजे तक, तो मैंने बराबर चेक किया, बोला कि यार ये तो लग नहीं रहा कि होएगा नहीं। उन्होंने 5:10 के अंदर फिर वो आए आपके पास, ठीक है नहीं। जी तो बराबर।
यस अगर प्रश्न को अगर ठीक से भी नहीं समझ पा रहे हो आप, तभी भी प्रिडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जी। ना। और ये बहुत आसान नहीं है, ये जब तक आप पूरा प्रैक्टिस करोगे नहीं तब तक ये समझ ही नहीं आना कि कौन से टाइम पे ये घटना घटित होगी। आप देखो यही चार्ट ले लिया मैंने, तो एग्जाम्पल के लिए आपको जो सबसे इजी तरीका है बताने का वो बताते हैं, उसमें नहीं जाएंगे कि चार्ट जेन्युइन है कि जेन्युइन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मान लो हम बात ये करते हैं, इसी को ले लेते हैं यहाँ पे। तो जो मून के जो कोर लेंगे पहले कैसे मिलाते हैं वो देख लेते हैं, एक दो मिला के देखेंगे हो जाएगा। हम सपोज कर लीजिए हम मिलाते हैं मरकरी को, ठीक है जी। अरे, मरकरी को मिला रहे हैं, तो मरकरी जो है वो इटसेल्फ अपीयर हो रहा है यहाँ पे एसेंडेंट का। तो फर्स्ट हाउस। मून मून का, हालांकि साइन लॉर्ड नहीं मिलाते क्योंकि साइन लॉर्ड दशा में नहीं आता ना स्टार लॉर्ड से। तो ये आप मून को ले लीजिए, तो यहाँ पे मून कहीं भी नहीं है, ठीक है नहीं, मून यहाँ पे कहीं भी नहीं है। बट फिर भी मून अगर यहाँ पे अपीयर हो जाता है तब भी वो एसेंडेंट में है ना, इसको भी मत आप इग्नोर करना, ओवरलुक ना हो जाए ये भी। तो यहाँ पे मून अपीयर इटसेल्फ हो गया, मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो मून यहाँ पे नहीं होता है, इन दैट केस मून मे बी द स्टार लॉर्ड ऑफ मरकरी और सब लॉर्ड ऑफ मरकरी। लाइकवाइज सन सैटर्न सैटर्न, sun does not have moon in star lord or sub lord. Then we'll check Mercury, Mercury in Rahu, Rahu signify moon, no, ठीक है। Then Saturn, Saturn in a Jupiter and Mercury. In that case, suppose if moon is not here, ठीक है, then what we have to do, we will either fix moon as a sublord or as a subsublord. How we can do like that? कैसे करेंगे इसको? तो सिंपली यहाँ पे हम लोग कस्प टूल ले लीजिए, एसेंडेंट ले लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में क्या आया? अच्छा इसमें ये, एक सेकंड, 1 मिनट। ये सैटर्न, आफ्टर सैटर्न जुपिटर एंड राहु, देन मरकरी, देन केतु, देन वीनस, देन सन, देन मून, देन वी विल अडॉप्ट सी, है ना। अब तो ये मून टैली हो गया यहाँ पे, तो टाइम जो था वो हमने थोड़ा बढ़ा लिया, तो मून यहाँ पे टैली हो गया। अभी मरकरी, तो मरकरी इटसेल्फ अपीयर हो रहा है, वो भी हो गया। फिर हम लेते हैं यहाँ पे राहु, तो राहु क्या है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है जुपिटर सैटर्न को, है। तो यहाँ पे ये सैटर्न जो है ना वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया राहु के साथ। अब क्या देखना है हमारे को, क्या देखते हैं कि भाई ये जो आपका मून का स्टार लॉर्ड मून और सन का स्टार लॉर्ड मार्स, ये मैरिज वाले, अगर हम बात करें मैरिज के लिए, तो वो यहाँ पे अपीयर होने चाहिए। कहाँ पे? या तो यहाँ पे अपीयर होता मून एंड मार्स। तो क्या यहाँ पे मून एंड मार्स अपीयर हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, मून एंड मार्स अपीयर नहीं हो रहे हैं, तो हम इनको टाइम को जो है ना यहाँ पे क्या लेके आएंगे, मून और या मार्स यहाँ पे लेके आना है हमारे को, ठीक है। 7th हाउस को कर लेते हैं और नेक्स्ट करना शुरू करते हैं। मून एंड मार्स आ गया, मून अडॉप्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देखो मून फिर गायब हो गया, है ना। मून यहाँ पे फिर गायब हो गया। अब क्या है, ऐसे ही टाइम को आपने आगे बढ़ाना है, एसेंडेंट में जो है ना मून किसी भी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि मून मून और मरकरी में है, ठीक है ना। ये तो मून मरकरी में है, ये तो आ ही रहा है, हम लोग ओवरलुक हो गया, है ना। मून और मून का स्टार लॉर्ड मे बी द कोरूलिंग प्लैनेट ऑफ एसेंडेंट। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको जो ध्यान रखना है कि को रूलिंग प्लैनेट जो है मून का और एसेंडेंट का, ये जो राशि लॉर्ड
स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड, ये जो प्लैनेट्स हैं ये इटसेल्फ अपीयर हो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सारे प्लैनेट, या ये जिनके स्टार में है STL और SL वो यहाँ पे अपीयर हो जाएं, या ये वाले जो प्लैनेट्स हैं ये ऐसे प्लैनेट्स के स्टार में हो या सब में हो। इतनी सी तो बात है। यानी कि या तो मून के कोरूलिंग प्लैनेट जितने भी हैं वो इटसेल्फ अपीयर हो जाए असेंडेंट में, या मून के कोरूलिंग प्लैनेट का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड इनमें से कोई एक हो असेंडेंट में, या असेंडेंट के कोरूलिंग जिसके भी स्टार और सब में हो उनमें वो प्लैनेट हैं जो मून के कोरूलिंग में है, वैसे वर्षा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जाएंगे आपको दिखेगा कि भाई ये हो गया, है ना। और फाइनली थोड़ा बड़ा क्वेश्चन अगर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें आप क्या करना होता है आपको, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये सूक्ष्मा लॉर्ड और प्राणा लॉर्ड, ये जो दो प्लैनेट हैं ये भी जो एसेंडेंट के जो को रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं ना, एट द टाइम ऑफ हैपनिंग एन इवेंट वहां पे ये भी टैली होते हैं। इसको भी आपने नोट करना है। तो आप वीडियो को जब भेजूंगा तो ये पॉज करके और ये सारा रूल आप लिख लेना। इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। बाकी सर सूक्ष्म और प्राणा कैसा सेट करते हैं? ये देखो ना, सूक्ष्म अभी और वो जो टाइम था, जो हम लोगों ने टाइम बनाया था, ये जिस समय हमने टाइम लिया था उस समय ये कुछ और था, माने कुछ मिनट। जी। और प्राणा लॉर्ड जो है, ये देखो यहाँ पे आज का दिन क्या है, 6:17, सन सन चल रहा है। तो जैसे भी आप टाइम बढ़ाओगे, जैसे मान लो यहाँ पे हमने ये बढ़ा दिया, यहाँ पे हमने कर दिया, सपोज करो ये हमने कर दिया 20 आवर्स, है ना, 20 आवर्स कर दिया अपडेट। ठीक है। तो ये पे यहाँ पे कोरूलिंग भी सारे बदल गए, और यहाँ पे आ गया जुपिटर जुपिटर जुपिटर, है, यहाँ सैटर्न वीनस। तो ये जो जुपिटर और वीनस है, जब हमने ये बढ़ाया है तो ये भी तो चेंज हो गए, है ना। मून का तो कोरूलिंग हमने ऑलरेडी कर लिया था, इतनी जल्दी तो मून के जो कोरूलिंग बदलने वाले नहीं है, लेकिन यहां तो बदल जाएगा टाइम। तो क्या करेंगे, ये जो जुपिटर है और ये जो सन है वो यहाँ पे होने चाहिए। तो सन इटसेल्फ अपीयर हो रहा है यहाँ पे और जुपिटर भी इटसेल्फ हो रहा है। अगर नहीं होता तो जुपिटर का जो स्टार लॉर्ड है मून एंड सैटर्न वो यहाँ पे आने चाहिए थे। अगर नहीं है तो इनमें से कोई एक प्लेनेट ऐसा होना चाहिए था जो कि जुपिटर को एज ए स्टार लॉर्ड ले रहा हो या एज ए सब लॉर्ड ले रहा हो। बस इतनी सी तो बात है ना। ठीक है, नहीं, बाकी सारा सर ये कस्प रोटेशन, सर ये, हेलो सर, ये हाँ कस्प रोटेशन आपने जो किए करके बताया अभी, हाँ, ये सारे कस्प के लिए सब सारे लड़ बस के ही लिए ये है? आप इसको रोटेट कर सकते हो। यहां से पहले मान लो किसी ने अपनी वाइफ के लिए या फर्स्ट चाइल्ड के लिए पूछा है, यहां से आप रोटेट कर लो, और फिर ये यहां से आप कस्प टूल लोगे तो वो अकॉर्डिंगली चेंज होगा, है ना। ये अकॉर्डिंगली चेंज होगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं। नेक्स्ट में सैटर्न आ गया देखो, है ना। तो आप जो ये कस्प रोटेशन है इसको आप यहां इस्तेमाल कर लो ऑटोमेटिकली। और इतना ही नहीं होगा, यहां पे भी सारे कस्पल पोजीशन उसी के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। आप देख सकते हो सन जो है ना यहाँ पे 10th हाउस का सब लॉर्ड है, अगर हम लोग कस्प रोटेट नहीं कर रहे हैं तो। अब आ जाओ यहाँ पे, इसको हमने कर दिया यहाँ पे 4th पे, है ना। अब 10th जो है ना वो 7th के अंदर आ गया मून सन। यानी कि आप जैसे भी रोटेट करोगे वो पूरे के पूरे कस्पल पोजीशन वैसे ही चेंज हो जाएंगे, लेकिन इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट प्लैनेट की वही रहेगी, केवल भाव बदल जाएंगे, कस्पल पोजीशंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नहीं, इतनी सी ही स्टोरी है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो एक लाइन में अगर सीखे
तो मून और मून का स्टार लॉर्ड प्राइमरी हाउस के अंदर आना चाहिए। फिर जो आपका को रूलिंग प्लैनेट है मून के, वो एसेंडेंट के को रूलिंग प्लैनेट से मैच करना चाहिए। मैच करने के तीन तीन तरीके हैं, देयर आर 3 टाइप्स। इटसेल्फ, अगर मून के को रूलिंग प्लैनेट इटसेल्फ को रूलिंग बन जाए एसेंडेंट के, या मून के को रूलिंग प्लैनेट का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड वो प्लैनेट हो जो एसेंडेंट के को रूलिंग में से कोई हो। और अगर नहीं है तो एसेंडेंट के को रूलिंग में कोई ऐसा स्टार और सब में बैठा हो जो कि मून का को रूलिंग प्लैनेट है। कितना इजी है। जिस समय वो आप को रूलिंग मिलाने के बाद देख रहे हो कि जो को रूलिंग प्लैनेट है एसेंडेंट के और मून के और दशा लॉर्ड्स के, वो सब के सब प्राइमरी और सपोर्टिव हाउस के अंदर इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट रखने भी चाहिए। जो सूक्ष्म और प्राणा लॉर्ड है वो भी को रूलिंग प्लैनेट एसेंडेंट के साथ मैच करेगा। इतना सही है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करते जाइए, आपको बड़े आराम से सारी चीजें जो है ना वो मिलती जाएंगी। लेकिन क्या है, ये आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो जो चेन है, सीक्वेंस है, वो आप भूल जाओगे। उसके लिए मैंने आपको एक फ्लो चार्ट पहले भी दिखाया था, आप वो भी देख लीजिए एक बार। ठीक है ना। हमने क्या बोला था, ये गेस्ट वाली बात जो थी, ये गेस्ट वाली जो बात थी, उसमें हमने बोला था अराइवल ऑफ गेस्ट के लिए क्या करना है। प्रॉमिस में देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, प्राइमरी हाउस के अंदर जाना ही चाहिए। पहले कस्पल पोजीशन और आपका प्राइमरी हाउस का जो कस्पल पोजीशन, और कंपलसरी तौर पे 11th हाउस का जो सब लॉर्ड है, यानी कि फर्स्ट कस्पल पोजीशन कंपलसरी होता है, 11th कस्पल पोजीशन भी कंपलसरी होता है। और कंपलसरी वो होता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। मैरिज करें तो 7th हाउस कंपलसरी होगा, चाइल्ड की बात करें तो 5th हाउस इज कंपलसरी। तो ये 3 सब लॉर्ड, ऑल दीज 3 सब लॉर्ड शुड प्रॉमिस द इवेंट। नेक्स्ट स्टेप है मून के को रूलिंग को एसेंडेंट के को रूलिंग से मिलाना। मिल जाता है तो उसके बाद फर्दर स्टेप क्या है कि जो आपके मून के को रूलिंग है, जो एसेंडेंट के को रूलिंग है, जो दशा लॉर्ड्स हैं, वो सब के सब जो है ना वो उस घटना को देने चाहिए, यानी उनकी इन्वॉल्वमेंट प्राइमरी और सपोर्टिव में होनी चाहिए। इसके पहले आपको सूक्ष्म और प्राणा लॉर्ड भी चेक करना है कि वो एसेंडेंट के को रूलिंग के साथ अपना संबंध बना रहे हों। तो संबंध बनाने की बात करें तो मून के को रूलिंग वो एसेंडेंट से बनाएंगे घटना के टाइम पे, और जो सूक्ष्म और प्राणा लॉर्ड है वो भी आरपी एसेंडेंट के साथ अपना रिलेशन बनाएंगे। मून का स्टार लॉर्ड, सन का स्टार लॉर्ड, ये प्राइमरी हाउस के अंदर आने चाहिए, नहीं तो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हो जाए उस घटना को देने के लिए। तो ये 4-5 चीजें आप नोट डाउन कर लो। ये आपको फ्लो चार्ट मैंने दिखा दिया है, आप इसको बार बार प्रयास करोगे तो ये हो जाएगा। आफ्टर 10 मिनट्स आई विल सेंड अगेन अ लिंक। उसके बाद हम लोग केवल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है ना, अगर मौका लगा, अगर एग्रीमेंट हुई तो कोई बड़ा इवेंट ले लेंगे अभी आज ही।